ٹی وی پر، رائٹ؟ تو میں چاہ رہی ہوں 5-6 سوال ہی لے لیں کہ کوئی تو کلیئر ہو جائے، جیسے میں اتنی چھوٹی چیزوں میں پھنسا ہو تو وہ بھی ادھر تک آ جائیں، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں پکی والی۔ اچھا، انم ملک نے بھی جوائن کیا ہے۔ انام، ٹرکی کیسا چل رہا ہے؟ اچھا جی، اگلا سوال ہے اچھا سوال تو نہیں، گائز پلیز پرے فار عمران خان، آئی نو اللہ از ود ہم اینڈ نو ون کین ڈیفیٹ ہم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ تو ہوگا، نو ون کین، نو ون کین، انشاءاللہ۔ اچھا جی، ویئر آر یو سنم؟ میں اپنے گھر پہ ہوں۔ نجم بھائی، مجھے آپ کا عمران خان کے ساتھ انٹرویو بہت اچھا لگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا سر، یہ آ رہا ہے غصہ کیسے ختم کریں؟ غصہ غصے کے لیے ایمان کا لیول بڑھانا پڑے گا۔ ایمان کا لیول بڑھے گا، اللہ کی قربت ملے گی تو آپ زیادہ برداشت بڑھے گی۔ اچھا دوسرا، اگر غصہ جائز بات پہ آ رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کا مطلب ہے اندر ابھی ہمارے ضمیر جاگ رہا ہے۔ اچھا اگر غصہ اپنے حقوق پہ آ رہا ہے اور دوسرے کے حقوق پہ ہم بالکل ہی بے حس ہو جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں ہر لحاظ سے بیلنس کرتا ہے کہ غصہ جسٹیفائڈ بھی ہے یا نہیں ہے۔ پہلے تو قرآن آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا غصہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جائز ہے، پھر آپ کو طریقہ بتائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے والقاظمین الغیظ، پہلے تو غصے کو پی جاؤ، ہولڈ کرو تھوڑی دیر۔ پی جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیل نہ کرو جی۔ سچویشن کو، کہہ رہا ہے پی جاؤ۔ پھر کہہ رہا ہے وعافون عن الناس، اب اس کو معاف کرو۔ ابھی اصل کہانی شروع نہیں ہوئی ہے، پہلے آپ نے غصہ پیا اور پھر آپ نے معاف کر دیا، اتنی دیر میں تو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا۔ درگزر کیا۔ پھر کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت آ جائے گی آپ کے پاس۔ پھر کہتا ہے خذ العفو، یعنی معاف کرنے کے بعد ویأمر بالعرف، اب اس کو سمجھاؤ، اب اس کو ایجوکیٹ کرو، اللہ رسول کا واسطہ دے کے، اللہ رسول کے احکامات کو بیچ میں لا کے سمجھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہی چھوڑ دے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ اگر وہ نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو پھر جو بالکل ہی جاہل ہے، جو اللہ رسول کے واسطے پہ بھی نہیں، آپ کے اخلاق پہ بھی نہیں مان رہا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اسے تھوڑا ڈسٹنس کر لو، اپنے آپ کو تپاؤ نہیں۔ تو غصے سے یوز نہیں ہونا، غصے کو کنٹرول کر کے اس کو یوز کرنا ہے۔ جیسے عمران خان کی مثال دے دیتا ہوں، کیا اس کو غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ خاص طور پہ آدمی کرپٹ نہ ہو، کلین ہو، اس کے ہاتھ صاف ہو، تو اس کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ میں تو اچھا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہ غصے کو انرجی بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ول فائٹ، تو پھر وہ غصے کو انرجی بنا کے اور زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ٹیچر جو ہیں، غصے کو ہم انرجی میں ہمارے چینج جو کر ٹیچر سکتے ہیں ہیں۔ بابر بھائی، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ غصہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو پی جاؤ اور پھر اس کو انرجی بنا کے یوز کام کرو، تاکہ جو ایکچوئل جو جڑ ہے برائی کی وہ دور ہو جائے۔ غصہ ہاں جی، ادھر برائی کی جڑ، اس کو جڑ سے نکال دو اس کو۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ نجم بھائی، اس سے میں اپنی لائف ریلیٹ کر کے بتاؤں، جیسے ہم عورتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں چھوٹی چھوٹی بات بھی کسی کی بری لگ جاتی ہے۔ اب میرے جو ہسبینڈ نے، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے بولا تھا، ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ پیار سے رکھتے ہیں، تو ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے نا پیار پیار میں موٹو کر کے کچھ بول دیا، تھوڑی پرانی بات ہے، تو اب وہ غصے میں ریئیکٹ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ نجم بھائی، اب میں نے اس کا غصہ، ہم نے انرجی کیسے چینج کی، میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کر دیا، میرا غصہ ادھر نکلا کہ وہی مجھے موٹی کیسے دیا۔ تو اب وہ جب غصہ، جو ہم اپنی انرجی چینج کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ پھر آتا ہے، لو بھی غصہ میں نے ادھر نکالا، لو میں موٹی تھی، میں پتلی ہو کے دکھاؤں گی۔ تو یہ بھی ایک انرجی چینج کرنا ہے، ایسے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی، آپ نے چینج کرنی یس، ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا؟ یہی کیا کہ انہوں نے بجائے اس کو لڑنے جھگڑنے کے، انہوں نے سامنے والے کا شرک ختم کر دیا، سامنے والے کا کفر ختم کر دیا، تو اس سے وہ ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان بن گیا۔ تو آپ نے برائی سے جنگ کی بجائے کہ لوگوں سے کرنے کی، تو برائی کو جڑ سے
निकालने के बिल्कुल लिए सही। गुस्सा पीना पड़ता है। जी जी जी। तो और जो लोग कुरान से ये देखना चाहते हैं, मैं उनको ये कोट कर दूं, जैसे सूरह इमरान 3 आयत नंबर 134, उसमें अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं, गुस्सा पी जाने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं नजम भाई। अ, ये ना उम्मीदी क्यों होती है? बिकॉज अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता। उफ, सीधी सी बात है, जब आपको, आप एक अस्पताल में है और आपका प्यार करने वाला, उसकी सर्जरी होनी है, आपके पास पैसे नहीं है और किसी को आप फोन ही नहीं कर सकते, तो नाउम्मीद तो होंगे ना। और अगर आपको पता है कि कोई है हम्म, और वो फोन भी उठाएगा मेरा, तो फिर आप नाउम्मीद क्यों होंगे? वो कहेगा आपको कि फिक्र नहीं करो मैं पहुंच रहा हूं, तो आपके अंदर ठंड पड़ जाएगी। तो इसीलिए जब अल्लाह के साथ हम्म, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में नहीं होती, हम अल्लाह के नाम को जानते हैं सिर्फ, और जब नाम से हमारा मसला हल नहीं वो होता नहीं तो हम जानते। नाउम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि नाम जो है वो, नाम से सोल्यूशन थोड़ी है, नाम से हो पाती है, लेकिन अहकामात में हम्म, सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन से नाउम्मीदी जाती है। जी। और ना उम्मीद हमें शैतान कर रहा होता है, ये हमें जी आइडिया भी जी, तो नहीं है। अल्लाह, वो जो हमारे यस, अंदर बैठा हुआ वो है। कह रहा है कि कोई रास्ता नहीं है आगे, वो कह रहा है कि बस ये ऐसे ही चलेगा, इसका हम्म, कोई हल नहीं है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हमारा अल्लाह से कम्युनिकेशन हो जाए। वो ये चाहता है कि अल्लाह सिर्फ एक ख्याल की सूरत में ही रहे हमारे पास, एक गुमान की फॉर्म में रहे हम्म, अल्लाह, कि शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, शायद हम्म, अल्लाह हमारी तो सुनता ही नहीं। ये तो ख्याली बात हो गई ना। अब आप मेरे सामने हैं, लाइव है, कम्युनिकेट कर रही हैं, और मैं कह रहा हूँ कि यार सनम तो बात ही नहीं सुनती। सनम तो सामने है, आप कम्युनिकेट तो करो, उसका फोन तो मिलाओ, उसका नंबर तो डायल करो। तो अल्लाह अपने कलाम कुरान हकीम के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, हम वहां से कम्युनिकेट नहीं करते। तो फिर शैतान हमें अंदर से मायूस कर देता है, वो कहता हम्म, है कि नहीं यार, तो वो तो और लोग होते हैं जिनकी सुनी जाती है, तुम वो हो ही नहीं, तुम तो गुनहगार हो, तुम तो। वो हमें माफी भी नहीं मांगने देता, हालांकि जिस दिन हम माफी मांगते हैं उस दिन से हमारी हॉटलाइन बन जाती है अल्लाह, हॉटलाइन, रहमत हो जाती है। डायरेक्ट लाइन बन जाती है। जिस दिन हम माफी मांगते हैं, कुरान खोलते हैं, अल्लाह से कम्युनिकेशन शुरू फॉलो करेंगे सिर्फ अल्लाह की, तो फिर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस कैसे सुन रहे होते हैं? क्योंकि तो क्योंकि ये हम खुद से जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपने आप को। हमने अल्लाह भी अपनी मर्जी का समझा हुआ जी होता है यहाँ पर। हम जी, समझते हैं, कभी जी कंफर्म ही हम नहीं किया। समझते हैं कि यार वो तो मतलब मेरे साथ है। अल्लाह हर किसी के साथ नहीं है। जी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है, अल्लाह तकवे वालों के साथ है, अल्लाह तव्वाबीन तौबा करने वालों के साथ है। अल्लाह हर किसी के साथ नहीं है। अल्लाह खाना पीना हर किसी को देता है, ऑक्सीजन हर किसी को देता है, हर किसी के जी। साथ नहीं है। क्योंकि वो साथ, अल्लाह खुद वही पाक है, वो किसी को पाक करता है फिर साथ होता है। अल्लाह नापाक के साथ कैसे हो सकता है? अल्लाह नापाक पर रहम करके उसको सही पाक कर बात है। देता है। ओए, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने विटनेस किया है। भाई हम सब यही तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नफ्स देखे ना, नफ्स एक दिन पाक हमने कर भी लिया तो फिर दोबारा पूरी दुनिया की चीजें खुराफात उसके अंदर जाएंगी अगले दिन। तो इसीलिए हमें जी 365 डेज अल्लाह की बात नफ्स के अंदर, नफ्स की जो है वो दो तीन जगहों से वो अंदर जाता है। अल्लाह की बात एक तो कान से जाता है नफ्स के अंदर, आंखों से जी, जाता है, जो हम सुनते हैं, ये जो दो हम चीजें देखते हैं। यहां से। और फिर अगर सोच, अल्लाह के बारे में सोचा जाए, तो सोच से भी अल्लाह बेदार होते हैं अंदर। अल्लाह के बारे में जी सवालात आते हैं कि यार, जैसे हम सब, आपके साथ भी यही हुआ होगा कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है। इसका मतलब है सोच में बेदारी आ रही है। हम्म, सोच में जी जी बेदारी जी जी आती जी है तो इसका बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि आपका सिग्नल सर्च कर रहा है, अल्लाह को सर्च कर रहा है। उफ, अगर वो अल्लाह को सर्च ही नहीं कर रहा तो फिर उसको अल्लाह का सिग्नल कैसे मिलेगा? वो सर्च कर रहा होता है तो अल्लाह के हुक्म के साथ तो अल्लाह को सर्च हम कैसे करते हैं? ब्लूटूथ खुल जाता अच्छा, बड़े मजे की बात जो मैं शेयर यही करना चाहूंगी, मैं बार बार सबको यही बोलूंगी कि मुझे भी मेरा अल्लाह कुरान मजीद से ही मिला है।
नहीं तो एक तसव्वुर तो हम सब ने बनाया होता है, बचपन से उठाया होता है कि अल्लाह ही सब दे रहा है, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही सारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ होते हैं, अल्लाह प्रॉब्लम से बड़े हैं। लेकिन ये हम कंफर्म कैसे करते हैं? वो कुरान से ही करते हैं। तो मैं सबको यही दावत दूंगी कि सब लोग कुरान मजीद की तरफ आएं, नहीं तो ये रमज़ान हमारा आएगा और चला जाएगा, वो रहमत नहीं मिलेगी हमें, वो रिश्ता नहीं जुड़ेगा अल्लाह ताला से। तो जो लोग अभी खाली रोजे रख रहे हैं, तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस। और बड़ा मजा आ रहा है कि जब अब कुरान पढ़ रही तो मुझे समझ आ रहा है, वो अल्लाह ताला मुझे ये कहते हैं। मैं रोजाना कुरान मजीद खोलती हूँ, और स्पेशली हमारे सर बाबर चौधरी जो अर रहमान अर रहीम के फाउंडर हैं, वो हमें रोजाना कुरान खुलवाते हैं हमारे घरों में। हम अपना अपना जिक्र लेते हैं और फिर वो अप्लाई करते हैं। जब हम अप्लाई करते हैं तो ही हमारी जिंदगियां बदलती हैं, कुछ जो बुराइयां होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और फिर अल्लाह ताला इसी तरह चीजें आसान करते हैं और जिंदगियां खूबसूरत होती जाती हैं। और आई स्वेयर टू एवरीवन कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अल्लाह ताला को, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो नजम भाई, अब ये सवालों की तरफ मैं जाती हूँ, जो कि अब बॉक्स में 99 अबव आ गए हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, अल्लाह से पाक अनूद अब्बासी का सवाल है, अल्लाह से पाकी वाले दोस्ती कैसे कर लें? ये क्या है सवाल? आई थिंक शी इज ट्राइंग टू आस्क के जो आप अनूद, आप अपना सवाल जरा मुझे और ठीक से बताएं कि आप क्या सुनना चाह रही हैं। अच्छा जी, से आपने हिदायत पाई, तो दैट इज अर रहमान अर रहीम। मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि आई एम लर्निंग कुरान फ्रॉम अर रहमान अर रहीम। वो इंस्टाग्राम का है, उसकी वेबसाइट भी है, तो आप लोग उस पर क्लिक करें, उनको मैसेज करें, बताएं कि हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। और सबसे मजे की बात है, इट्स फॉर फ्री। जो मुझे ये सवाल फिर आने लग जाते हैं कि हाउ मच आर दे टेकिंग, तो इट इज फॉर फ्री एंड इट इज एवरी नाइट जूम सेशंस होते हैं जी। तो मैंने कहा आज ये भी क्लियर कर दूं कि हम वो लिख के बता रही है कि पक्की, जी मतलब नजम भाई। पक्की दोस्ती। अच्छा अच्छा, पक्की वाली दोस्ती कैसे है? ठीक है, अल्लाह से पक्की वाली दोस्ती कैसे कर लें? जी नजम भाई। देखिए, पक्की दोस्ती जो है वो आम तौर पे कैसे होती है किसी के साथ? वो एक दिन की होती है या फॉरएवर होती है? फॉरएवर अच्छा, चाहिए होती है। जिससे पक्की दोस्ती होती है, आप उससे क्या कभी कभी मिलते हैं? उसके बगैर रह सकते हैं? आप तो उसके साथ इन टच रहना चाहते हैं ना? अच्छा, जिससे पक्की दोस्ती होती है, क्या उसको जानते नहीं है? जानते हैं, पूरा जानते जानते हैं। हैं तभी तो पक्की दोस्ती होती है। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो उससे बेहतर कोई जरिया है ही नहीं जो उसके अंदर से निकला, यानी अल कुरान। तो कुरान के जरिए ही पक्की दोस्ती हो सकती है, क्योंकि जब तक दूसरी पार्टी के लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं पता लगेंगे, दूसरी पार्टी का राइट एंड रॉन्ग नहीं पता लगेगा, अच्छा बुरा नहीं समझ आएगा, वैल्यू सिस्टम नहीं पता लगेगा, तो हम करीब कैसे होंगे? तो अल्लाह से पक्की दोस्ती उसके कलाम के जरिए ही होगी, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करे। जब आप उसके हुक्म को मानोगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। और पक्की दोस्ती ट्रस्ट की बेस पे होती है, कि मुझे ट्रस्ट है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, उसको भी ट्रस्ट है ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। दैट इज पक्की दोस्ती। वाह, कितना खूबसूरत आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, हम अपने फ्रेंड्स को भी देखें जिनसे जिनसे पक्की दोस्ती होती है, हस्बैंड, मामा, फादर्स, बहनें, हम उसमें फिर ये भी ख्याल करते हैं कि हम उन्हें किसी तरह से भी नाराज ना yes. कर दें। अगेन आई थिंक यही तकवा भी है, तकवा, तकवा आपको कॉन्शियस रखता है कि कहीं आप ओवरलुक ना कर रहे हो, इग्नोर ना कर रहे हो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। क्योंकि आपस के रिश्ते में भी आपको, अब आपको सच बताऊं, मैं सलवा से, अपनी बेगम से कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आप एक घर में रहते हुए भी अपनी अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको 2-3 दिन के बाद ख्याल आता है कि यार हमने ठीक से बैठ के बात ही नहीं की अभी तक। और वो 2-3 दिन लग रहे होते हैं पता नहीं कितने साल हो गए। तो एक घर में रहते हुए भी कभी कभी आप अपनी अपनी लाइफ में मगन होते हैं।
तो पक्की दोस्ती के लिए तकवा बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं है कि नहीं बिल्कुल ही एक घर में रहते ही अपने अपने कहीं निकल गए। वी हैव टू स्टे क्लोज कनेक्टेड, सही बात है ना? जी जी नजम भाई, और ये मैंने है एक्सपीरियंस ना? किया है। मैं तो जो सवाल आते हैं उधर से पूछ कि मैं अपने हर इबाद की सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो ये कितनी प्यारी बात है, वो तो हर एक की सुनते हैं, लेकिन आगे वाली बात कंडीशन हम देख ही नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला जो हमें आगे कह रहे सुना हैं कि तुम भी तो फिर आयत मेरा सुना जवाब दो। दो। मैं सब रमजान कुछ है, सुनाती हूँ। लोड कर दे सबको। ओह जी, मैं तो रोजाना लोड होती हूँ। मेरा दिल करता है मैं बताऊं कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। अच्छा जी। सूरह बकरा, सूरह बकरा 2 आयत नंबर 186 पे जाती है जी। अल्लाह ताला यहाँ हमें कह रहे हैं, उन्होंने ये कुरान ज़ाहिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और उनके थ्रू हम तक ये बात आई। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो यकीनन मैं उनके बहुत करीब हूँ और पुकारने वाले की यानी दुआ करने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। बस लाजिम है, अब ये वो कंडीशन है जो मैं बात करी थी, बस लाजिम है कि मेरे अहकाम बजा लाएं और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पालें। हम ये मिस कर जाते हैं और फिर कह रहे होते हैं हम तो मांग रहे हैं, हम तो अल्लाह तो सुन ही नहीं रहा। तो हम अल्लाह की बात आगे सुन ही नहीं रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि फिर उन पे भी तो लाजिम है कि वो मेरी मेरी बात का जवाब दें, जो अल्लाह ताला हमें वो तो यहाँ से वो तो बताते हैं। कह रहा है कि मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब भी करता है या करती है। तो मसला ये है कि फिर हमें क्यों नहीं आ रहा जवाब? वो इसलिए क्योंकि हम क्योंकि कुरान सनम ही ने नहीं कहा खोल था मैं रहे लाइव हैं। आऊंगी इंस्टा पे, वो फेसबुक लगा के बैठे रहे। क्या एग्जाम्पल दिया। तो हम इंस्टा लगाते तो सनम मिलती ना वहां पे। तो अल्लाह ने जवाब कैसे दिए थे दुआओं के या सवालों? अल्लाह ने जी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी इंसानियत को कुरान के जरिए जवाब दिए थे, वही करके। और वो वही हमारे घर में पड़ी थी आपके सामने, अभी आपने खोल के वही तो सुनाई है। तो हमने यहां से इसको बंद कर दिया, अब हम जवाब किधर ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। हवा में, फिर इधर हम से फिर उधर हम से, शायरी कर रहे हैं गूगल पे। कि वही वो है, और कोई तो है जो, वो तो कह रहे हैं भाई मैं हूँ, निजाम। वो तो कह रहा है मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। नजम भाई, फिर जी। इस पे ना, इस पे मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है जो मैंने आपके इंटरव्यू में भी सुनी थी, इमरान खान के साथ जो अभी आपने लिया था उनका इंटरव्यू। उसमें ये था कि हम एज मुस्लिम्स, हम जब भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और उसमें कितने सुन्नत होते हैं, कितनी रकात होती हैं, फर्ज होते हैं, नफल होते हैं, हम उसमें बार बार कह रहे हैं एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधी राह दिखा, सीधी राह। अब अल्लाह ताला इसका भी तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम लेने ही नहीं चाह रहे, हम मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो वो जो सीधी रास्ता हम मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, उसका भी तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया है, वो लेकिन हम सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर हम जो वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम मांग तो रहे ही नहीं है दुआ, जी। तो तो हम फिर वो जिस दिन पढ़ते हम हैं मांगते हैं, इस पे। जिस दिन हम मांगते हैं उस दिन जवाब मिलता ही मिलता है। 17 सूरह की 9 नंबर आयत जी सुनाए 79। ना? जी, मैं अभी सुनाती हूँ। ईद जब भी सरात, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि ईद सरात का जवाब अभी आ रहा है। जी 17 की सूरह इज़राइल, बनी इज़राइल आयत नंबर 9। और बेशक ये कुरान उस राह की तरफ हिदायत करता है जो सबसे ज्यादा सीधी आ है। गया ना जवाब? ये जवाब आ गया। इसकी अरबी देखो, कितना आसान है, अल्लाह ताला से तो इन्ना मिमिक्रेट हाजल करना। कुरान, बेशक ये कुरान यहदी हिदायत करता है। वहां हम कह रहे थे अल्लाह से ईदिन सरात मुस्तकीम, तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये कुरान हिदायत करता है हिया अक़वम, जो सबसे मुस्तकीम है, जो सबसे सीधा है, जो सबसे स्टेबल रास्ता है। तो कुरान और अल्लाह क्या अलग अलग है? कुरान अल्लाह ही को तो कलाम है।
तो अल्लाह ने जो हिदायत दी वो आसमान से आवाज नहीं आई, वो आसमान से वही आई, और वो ये हमारे पास कुरान की आयत की फॉर्म में है। ये अल्लाह का कलाम ही तो है, अल्लाह का जवाब ही तो है। तो सीधा रास्ता यहाँ से मिलता है, और हर चीज का मिलता है। शादी कैसे करनी है, कितनी प्यारी बात है, शादी कैसे करनी है, कब करनी है, किससे करनी कितनी है, बच्चों प्यारी की बात। तरबियत कैसे करनी है, कारोबार कैसे करना है, सियासत कैसे करनी है, दुनिया में कैसे एग्जाम्पल सेट करनी है, रिश्तों को कैसे लेके चलना है, नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये रास्ता ही है ना। सबर ये कैसे कैसे करना करना है, है, हर एक गुस्सा कैसे चीज करना हमें है। जवाब जिंदगी यहीं के से आ रास्ते रहा है। की हिदायत जो है वो यहाँ से मिलेगी, जो हम कुरान में, वो भी देखे ना, कुरान से मांगा था। सूरह फातिहा कुरान ही तो है, तो कुरान से मांगा था तो कोई जवाब कहीं और से आना था, वहीं से तो जवाब आना था। सही तो बात है। इट्स दैट सिंपल। अगर अल्लाह तौफीक दे दे, वरना पूरी जिंदगी गुजर जाती है, नहीं समझ में आती। तौफीक दे दे तो सही बात आ है। रही है हमारे जैसे लोग। तो इंशाल्लाह नजम भाई, मुझे ऐसा लगता है हमने इतनी सारी बातें की हैं कि किसी को ना ये 10-10 बार सुनना बार बार चाहिए सुनना ये चाहिए, आप वाला सही कह रही हैं, आप सही सेशन। कह रही हैं, इसको बार बार सुनना चाहिए। जी, क्योंकि इसमें छोटी-छोटी बातें वही बातें जहां हम फंसे हुए हैं कि अब हम नमाज तो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, और काफी लोग बड़ा शुक्र फील करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं। आई डोंट डाउट दैट, लेकिन मुझे, मैं भी पढ़ती आ रही थी, जब भी पहले भी पढ़ती थी, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ रही थी, मैं कायम नहीं कर रही थी। तो पूरे कुरान मजीद में तो यही मैंने लिखा पाया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करो पे आप थोड़ी सी हमसे शेयर करें चीजें, ताकि लोगों को भी समझ आए कि अब हमने नमाज सिर्फ पढ़नी नहीं है इस रमजान हमने कायम करके दिखानी, ताकि बाकी के भी 11 महीने तक हम वो कायम करें, नेक्स्ट रमजान के आने तक। वेरी तो ब्रीफ, नेक्स्ट टाइम हम इस पर डिटेल्ड बात कर सकते हैं। अकीम, अकीमुस जी सलाह, अकीम जी का मतलब है स्टैब्लिश करो, कायम करो, स्टैब्लिश करो। अच्छा, स्टैब्लिश हवा में होती है या ऑन ग्राउंड होती है कोई चीज? तो जैसे अखबार में खबर आई है जी कि बैंक कायम हो गया है, अभी बैंक की ब्रांच कायम हो गई है, तो इसका मतलब है कि जाके अकाउंट खोल सकते हो ना। वो खाली अखबार में नहीं है, वो वाकई मार्केट में ओपन हो चुकी है। सो अकीम करो, स्टैब्लिश करो राइट। सलात को। तो सलात का मतलब क्या होता है? सलात का मतलब होता है अल्लाह के साथ दो तरफा राब्ता। सलात जो हम खड़े होके अल्लाह के कलिमात पढ़ते हैं, ये दो तरफा राब्ता पढ़ रहे होते हैं हम। एक्चुअली ये हमें पढ़ना नहीं, हमें समझना होता है। तो जी सलात में जब अल्लाह से कम्युनिकेशन हो गई, जवाब मिल गया, आपने ईदिन सिरात मुस्तकीम कहा, पढ़ना नहीं, हमें समझना होता है। तो जी सलात में जब अल्लाह से कम्युनिकेशन हो गई, जवाब मिल गया, आपने ईदिन सिरात मुस्तकीम कहा, सूरह फातिहा में सवाल किया आपने अल्लाह से कि या अल्लाह, ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे वो वाला रास्ता चाहिए, मुझे सीधा वो वाला रास्ता नहीं दिखा, और वो वाला भी नहीं। हिदायत वाला। आगे से जवाब आया कि गुस्से को पी जाओ, क्योंकि हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम जिक्र आ उस दिन गया। गुस्से का था, या उस दिन आपका प्रॉब्लम जो है वो हम्म। गुस्से में गलत बातें बोल देने का था, तो आपने खड़े होकर अल्लाह से मदद मांगी। तो अल्लाह का जवाब आगे से आया कि यकूल लती ही आसन, ऐसी बात किया करो जो अच्छी हो, बेस्ट बात किया करो। तो नमाज एक्चुअली दो तरफा है, हम हिदायत मांगते हैं, आगे से आयत से जवाब आता है। अनफॉर्चुनेटली हमने जी उसको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन जो बचपन में याद करवाई थी, कुल हुवल्लाहु अहद, तब्बत यदा, इन्ना अतैना कल कौसर, हम उससे आगे बढ़े ही नहीं। जबकि सलात का मतलब, स्पेशली ये लेडीज तो एक आपने। प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अंदर आयात चेंज होते रहनी थी लाइफ के साथ साथ। सो अब वापस आते हैं अपनी सलात। हम्म। तो जो आपको मैसेज मिल गया आज, मिसाल के तौर पे अल्लाह कह रहे हैं गुस्सा पी जाओ और अच्छी बात करो, अब जाके कह रहे हैं अकीम करो इसको, अकीम उस सलात। अब खाली पढ़ो नहीं मुंह से, मैंने पढ़ लिया, कह रहे नहीं, पढ़ तो लिया है, अब जाके इसको करके दिखा दो। कायम आप करके दिखाओ टिल द नेक्स्ट नमाज एंड तो ये सो ऑन। अकीमुस सलात हो गई। अकीमुस सलात से बुराई और फाहशी दूर होती है, खाली पढ़ने से नहीं होती। पढ़ना नहीं, हमें समझना होता है। तो जी सलात में जब अल्लाह से कम्युनिकेशन हो गई, जवाब मिल गया, आपने ईदिन सिरात मुस्तकीम कहा, सूरह फातिहा में सवाल किया आपने अल्लाह से कि या अल्लाह, ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे वो वाला रास्ता मुझे चाहिए,
सीधा वो वाला रास्ता नहीं और दिखाओ, वो वाला भी नहीं। हिदायत वाला। आगे से जवाब आया कि गुस्से को पी जाओ, क्योंकि हो सकता है आप आपका ये प्रॉब्लम जिक्र आ उस दिन गया। गुस्से का था, या उस दिन आपका प्रॉब्लम जो है वो हम्म। गुस्से में गलत बातें बोल देने का था, तो आपने खड़े होकर अल्लाह से मदद मांगी, तो अल्लाह का जवाब आगे से आया कि यकूल लती ही आसन, ऐसी बात किया करो जो अच्छी हो, बेस्ट बात किया करो। तो नमाज एक्चुअली दो तरफा है, हम हिदायत मांगते हैं, आगे से आयत से जवाब आता है। अनफॉर्चुनेटली हमने जी। उसको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन जो बचपन में याद करवाई थी, कुल हुवल्लाहु अहद, तब्बत यदा इन्ना अतैना कल कौसर, हम उससे आगे बढ़े ही नहीं। जबकि सलात का मतलब स्पेशली ये लेडीज तो आप एक ना। प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अंदर आयात चेंज होते रहनी थी लाइफ के साथ साथ। सो अब वापस आते हैं अपनी सलात। हम्म। तो जो आपको मैसेज मिल गया आज, मिसाल के तौर पे अल्लाह कह रहे हैं गुस्सा पी जाओ और अच्छी बात करो, अब जाके कह रहे हैं अकीम करो इसको, अकीम उस सलात, अब खाली पढ़ो नहीं मुंह से मैंने पढ़ लिया, कह रहे नहीं, पढ़ तो लिया है, अब जाके इसको करके दिखा दो। कायम आप करके दिखाओ टिल द नेक्स्ट नमाज एंड तो ये सो ऑन। अकीमुस सलात हो गई। अकीमुस सलात से बुराई और फाहशी दूर होती है, खाली पढ़ने से नहीं होती।